مقبوضہ کشمیر میں مودی کی درندگی، پاکستان کا بڑا اقدام۔ بھارتی وزیر اعظم کی پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کی درخواست مسترد کر دی۔ فیصلے سے بھارتی ہائی کمشنر کو آگاہ کر دیا گیا۔ مودی نے 20 ستمبر کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی درخواست کی تھی۔ پاک آرمی کے سابق افسر کرنل حبیب ظاہر کی بھارت میں حراست کی اطلاعات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی میڈیا حبیب ظاہر کی رہائی کو کمانڈر کلبھوشن کی رہائی سے مشروط کرنے کی افواہیں پھیلا رہا ہے۔ پاکستان نے کئی بار بھارت سے حبیب ظاہر کو ڈھونڈنے کی درخواست کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب کی بڑی کارروائی۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ اسلام آباد سے گرفتار۔ ریمانڈ کے لیے صبح احتساب عدالت پیش کیا جائے گا۔ گرفتاری کے لیے نیب سکھر اور راولپنڈی کی جانب سے مشترکہ کارروائی کی گئی، اعلامیہ جاری۔ یہ جو کالا قانون عامر کا بنا ہوا ادارہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی آج استعمال کیا جا رہا ہے جب سے حکومت آیا ہے۔ نیب کالا قانون ہے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا۔ حکومت نیب کے زور اور دباؤ پر چل رہی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھن گرج، خورشید شاہ کی گرفتاری کی مذمت، کہا حکومت کی نالائقی کو برداشت نہیں کریں گے، ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ناصر صاحب چلے گئے، فریال ڈالپور صاحب چلے گئے، ہمارا نمبر بھی آ جائے گا کسی دن، تو ہم مینٹلی سب تیار ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب کا پکڑا جانا یا ان کے بعد کسی اور کا پکڑا جانا ہمارے لیے کوئی ایسی شاکنگ نیوز نہیں ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت یا یہ جو نیب ہے، جو اعلی کار ہے اس حکومت کا، جس کو یہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ خورشید شاہ کا پکڑا جانا پیپلز پارٹی کے لیے کوئی دھچکے کی بات نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ رہنما نون لیگ عظمیٰ بخاری کی بھی تنقید، بولی حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے۔ اپوزیشن پہلے دن سے بلیک میل کر رہی ہے، ان کا مقصد صرف NRO لینا ہے۔ لٹیروں کا احتساب نہیں کریں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا، وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا۔ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پر کیسز بنائے، ہم نے اداروں سے سیاسی مداخلت ختم کی۔ ایک وقت وہ آیا جب کنسنسس تقریباً ہو گیا تھا، پھر کیا ہوا؟ تو پھر بھی وہاں سے سبوٹاج ہوا۔ کس نے کیا؟ میاں نواز شریف صاحب مان گئے تھے یہ ریفارمز کو، چودھری نثار نے سبوٹاج کیا۔ نون لیگ کے ساتھ نیب قوانین میں اصلاحات پر اتفاق کر لیا تھا، نواز شریف بھی مان گئے تھے، لیکن اصلاحات کے عمل کو چودھری نثار نے سبوتاژ کر دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر کا انکشاف۔ آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، اپوزیشن کے دھرنے میں شرکت کا عندیہ دے دیا۔ قصور میں 3 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ، وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر DPO قصور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ واقعے کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج، شہر بھر میں مظاہرے، IG پنجاب کا واقعے کا نوٹس، DSP اور SHO تھانہ سٹی کو معطل کر دیا۔ لاڑکانہ میں کتے کے کاٹنے سے جاں بحق ہونے والا بچہ سپرد خاک، اہل خانہ انصاف کے منتظر۔ محکمہ صحت سندھ نے اینٹی ریبیز شکایات سیل قائم کر دیا۔ طالبان نمرتا کا قتل یا خودکشی، ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ نہ چل سکا، حتمی رپورٹ کا انتظار۔ عدالتی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے سیشن جج لاڑکانہ کو خط لکھ دیا۔ پولیس کی ہاسٹل میں پوچھ گچھ، واقعے کے خلاف کھوٹکی میں ہڑتال، طلباء بھی میدان میں آ گئے۔ سکھر پریس کلب پر ریلی، خیرپور میں ہندو برادری اور سول سوسائٹی نے شمع روشن کی۔ مودی مقبوضہ کشمیر کو قبرستان بنانے پر تل گیا۔ لاک ڈاؤن اور پابندیاں بدستور 45ویں روز بھی جاری۔ خوراک اور ادویات ختم ہونے سے انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ قابض فوج کا تشدد، سینکڑوں خاندان اجڑ گئے، ہزاروں شہری معذور، نہتے کشمیریوں کو آنکھوں سے محروم کر دیا گیا۔
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए पुरअज़्म। कश्मीर में कर्फ्यू के खात्मे तक भारत से बातचीत का इम्कान रद्द। कहा, कश्मीर से मुतालिक भारत पर आलमी दबाव है, रही सही कसर जनरल असेंबली में पूरी कर दूंगा। तूल खाम टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। बॉर्डर 24 घंटे खुला रहेगा। अमरीका तालिबान मुज़ाकरात में डेडलॉक का मामला ट्रंप के सामने उठाने का ऐलान। पाकिस्तान का हर शहरी भारतीय जाहियत के खिलाफ तैयार है। अवाम, हुकूमत और पार्लिमान कश्मीरियों के शाना बशाना है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक और लाहौर इलेक्ट्रिक को निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर दिया। दीगर 10 इदारों में भी निजकारी की मंजूरी। मुल्क भर में डेंगू ने पर फैला लिए। कराची में मजीद 48 अफराद में वायरस की तशखीस। पंजाब में भी मजीद 208 केसेस रिपोर्ट हुए। जुड़वा शहरों के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में भी कातिल मच्छर के वार। मुतासर अफराद की तादाद 1800 तक जा पहुंची। ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए हिंदुस्तान को इजाजत न देने का फैसला किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो जाना चाह रहे हैं जर्मनी और ओवर फ्लाइट की पाकिस्तान की वो एयर स्पेस इस्तेमाल करना चाह रहे थे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को सामने रखते हुए और हिंदुस्तान का रवैया सामने रखते हुए फैसला किया है कि हम वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को इजाज़त नहीं देंगे और ये फैसला हमने इंडियन हाई कमीशन को कन्वे कर दिया है। पाक आर्मी के साबिक अफसर कर्नल हबीब ज़ाहिर की भारत में हिरासत की इत्तलात दफ्तर खारजा ने बयान जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय मीडिया हबीब ज़ाहिर की रिहाई को कमांडर कुलभूषण की रिहाई से मशरूत करने के अफवाहें फैला रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने कई बार भारत से हबीब ज़ाहिर को ढूंढने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फौरी खबर आपको दें कि कराची के इलाके नॉर्थ कराची में मारूफ कॉमेडियन जाकिर मस्ताना डाकुओं का शिकार बन गए हैं। जाकिर मस्ताना से मोबाइल फोन, नकदी, गाड़ी की चाबी और कीमती अशिया लूट ली गई हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कराची का इलाका है नॉर्थ कराची, जहां मारूफ कॉमेडियन जाकिर मस्ताना डाकुओं का शिकार बन गए हैं और जाकिर मस्ताना से मोबाइल फोन, नकदी, गाड़ी की चाबी जबकि कीमती अशिया भी लूट ली गई हैं। आपको बताएं कि मुसल्लम मुल्ज़िमान उनसे नकदी, मोबाइल और गाड़ी की चाबी ले गए हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बताइएगा जाकिर मस्ताना ने मजीद क्या बताया इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, मारूफ कॉमेडियन स्टेज आर्टिस्ट जाकिर मस्ताना भी जो है वो डाकुओं का शिकार बने हैं। नॉर्थ कराची का इलाका है, सेक्टर 11 है, जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने जो है वो कार सवार जाकिर मस्ताना को लूटा है। मोबाइल फोन, नकद रकम, कीमती सामान, इनकी घड़ी भी उतरवाई है और इसके साथ साथ डाकू जाने से पहले इनकी गाड़ी की चाबी भी साथ ले गए, ऐसा कहना है जाकिर मस्ताना का। जबकि जाकिर मस्ताना का ये भी कहना है कि इस इलाके में इससे कबल इन्होंने मुताबिक शहरियों को जो है वो डाकू के हाथों लुटते कई बार देखा है। ये वारदात हुई है कुछ देर कबल, लेकिन पुलिस इस वाक़े से लाइन दिखाई देती है। मुताल्लिका थाने की पुलिस से हमारा राब्ता हुआ है, उनका यही कहना है कि इस वारदात के हवाले से उन्हें कोई इल्म नहीं है। जबकि जाकिर मस्ताना का मोबाइल फोन नंबर भी जो है वो बन जा रहा है, क्योंकि डाकू इनका मोबाइल फोन भी जो है वो लेकर रफू चक्कर हुए हैं। डाकू दंदनाते फिरते हैं। शहर में दर्जनों शहरियों को भी जो है वो लूटा जा चुका है। कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, लेकिन अब डाकुओं का शिकार बने हैं नॉर्थ कराची में मारूफ कॉमेडियन जाकिर मस्ताना, जिनको डाकू लूट कर फरार हुए हैं। बहुत शुक्रिया फैजान जली साहब का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत नैब के जोर और दबाव पर चल रही है। नैब से मुतालिक पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। नैब का काला कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हैं। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी किया। कहा मौलाना फजल रहमान के एहतजाज की इखलाक़ी हिमायत करते हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सखर का एमएनए सैयद खुर्शीद शाह साहब को नायब ने गिरफ्तार किया है। ये जो काला कानून आमिर का बना हुआ अदारा सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है।
पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ही आज इस्तेमाल किया जा रहा है। जब से हुकूमत आया है वो अवाम की वोटों की वजह से नहीं, किसी और की वजह से नहीं, नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होते हैं और नैब के जोर पे, नैब के दबाव पे चल रही है। तो इसका हम सख्त मुसम्मत करते। हुकूमत को डेडलाइन भी दिया है, हुकूमत के एलाइज को और हुकूमत के सहूलतकारों को डेडलाइन किया है कि हम अब इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली, जिसका असर कश्मीर पे, मईशत पे, जमहूरियत पे हो रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हम जमहूरी तरीके से अवामी इश्यूज को उठा के एहतजाज कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का इस्लामाबाद में धरना है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने खुद ऐलान भी किया हमायत का as far as moral support is concerned। नैब ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। तर्जुमान नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह पर आमदन से जायद असासों का इल्जाम है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। खुर्शीद शाह को बनीगाला से गिरफ्तार करके नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। नैब की टीम ने बड़े साईं को बनीगाला से गिरफ्तार किया, गाड़ी में बिठाया और नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह को सरकारी प्लॉटों पर कब्जे, आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। खुर्शीद शाह के खिलाफ 7 अगस्त से तहकीकात का आगाज हुआ था। खुर्शीद शाह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में बंगले के लिए एमएनएसटी प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराया। नैब ज़राए के मुताबिक होटल, पेट्रोल पंप्स और बंगले फ्रंट मैन और बेनामी इदारों के नामों पर है। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुर्शीद शाह कहीं भागे नहीं थे, उन्हें गलत गिरफ्तार किया गया, जबकि वज़ीर बल्दियात समेत दीगर ने भी भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी सियासत में टेंशन ले आई, वज़ीर आला सिंध ने शदीद मज़म्मत की। खुर्शीद शाह साहब कहीं चले जा रहे थे, खुर्शीद शाह साहब के मुल्क से भागे हुए थे, मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह भी खूब भड़के, जिनका माजी बिल्कुल बेदाग रहा, जो हमेशा जमहूरियत के लिए जिनकी बड़ी जदोजहद है, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब को आज गैर इखलाकी, गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रजा ने भी तनकीद कर दी। गिरफ्तार कर लिया तो उम्मीद है कि अपना काम करते हुए शवाहिद इकट्ठे किए हैं, उससे वो कुछ साबित कर सके। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत बौखला गई है। ये हुकूमत अकल से भी पैदल है और ये सलाहियत से भी पैदल है। नून लीग के रहनुमाओं समेत दीगर ने भी गिरफ्तारी पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खुर्शीद शाह का पकड़ा जाना पीपल्स पार्टी के लिए कोई धचके की बात नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने भी खुलकर तनकीद की, कहा हुकूमत का इस तरह का रवैया अपनाना इंतहाई गलत इक़दाम है। वो ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कर रहे थे। मुझे भी अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई, मैं तो खुद कहता हूँ ना कि जो बोलता है उसको पकड़ते हैं, तो तुम सबसे ज़्यादा बोलते हो। तो मैंने कहा हम घर वालों को पहले कह चुके हैं, भाई आसिफ साहब चले गए, फरियाल डालपुर साहब चले गए, हमारा नंबर भी आ जाएगा किसी दिन, तो हम मेंटली सब तैयार हैं। तो खुर्शीद शाह साहब का पकड़ा जाना या उनके बाद किसी और का पकड़ा जाना हमारे लिए कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हुकूमत या ये जो नैब है, जो आलाकार है इस हुकूमत का, जिसको ये पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने इंकशाफ किया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब के कवानीन में इस्लाहात के लिए इत्तेफाक कर लिया था। नवाज शरीफ भी मान गए थे, लेकिन इस अमल को चौधरी निसार ने सबूताज किया। नवीद कमर आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन से आए हैं, पीपल्स पार्टी को तो पता था कि ये चाहे किसी की भी हुकूमत हो, टारगेट पीपल्स पार्टी ने होना है। तो हम गवर्नमेंट में थे या हम अपोजिशन में थे, हमने हमेशा रिफॉर्म की बात की है। हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अली ज़फ़र साहब को भी ये बताना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर ही इज़ अवेयर ऑफ इट। हम जो भी अपनी कानून साजी करते थे कंसेंसस से करते थे, और अनफॉर्चुनेटली हमारा और उस वक्त की अपोजिशन का कंसेंसस नहीं हो सका। एक वक्त आया जी, एक वक्त वो आया जब कंसेंसस तकरीबन हो गया था। फिर क्या हुआ? तो फिर भी वहां से सबोटाज हुआ। किसने किया? मियां नवाज शरीफ साहब मान गए थे रिफॉर्म्स को, चौधरी निसार ने सबोटाज किया।
آپ کو بتائیں کہ قصور میں 3 بچوں کی لاشیں ملنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ڈی پی او قصور کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ قصور واقعے پر سب کا احتساب ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو معطل کیا جا چکا ہے، جبکہ عوامی فلاح کے لیے کام نہ کرنے والوں کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ چونیا میں 3 معصوموں کا ریپ کے بعد قتل، عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر غصہ ٹھنڈا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی۔ میں ایک بچے فیضان کے ساتھ زیادتی ثابت ہو گئی۔ معصوم کو ریپ کے بعد گلا گھونٹ کر بلندی سے پھینکا گیا تھا۔ پولیس نے تحقیقات کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ہم نے ایک جی آئی ٹی بنا دی ہے جس کو ڈی پی او خود ہیڈ کریں گے، ایس پی انویسٹیگیشن قصور اس میں ہے، سی ٹی ڈی آئی بی کے افسران ہیں اس میں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی ملزمان کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا یقین دلایا، جبکہ آئی جی پنجاب نے چونیا واقعے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تھانہ سٹی کو معطل کر دیا۔ چونیا میں ایک اور بچے کے اغوا کا انکشاف ہوا ہے۔ امیر حمزہ 3 ماہ قبل لاپتہ ہوا تھا، تاہم لاشیں ملنے کے بعد پولیس نے اب مقدمہ درج کیا ہے۔ علاقے میں بچوں کے اغوا اور قتل پر اہل